الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى كما تحب وترضى. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نگینہ تلاش کر نہ خزینہ تلاش کر، نگینہ تلاش کر نہ دفینہ تلاش کر، نبی سے ملنا ہے تو مدینہ تلاش کر. نگینہ تلاش کر نہ دفینہ تلاش کر، نبی سے ملنا ہے تو مدینہ تلاش کر. تیری ناقص نمازیں بھی ہو جائیں گی قبول، تیری ناقص نمازیں بھی ہو جائیں گی قبول. مختوم صحابی جیسا نابینا تلاش کر، مختوم صحابی جیسا نابینا تلاش کر. ندی پار کرنا ہے تو سفینہ تلاش کر، ندی پار کرنا ہے تو سفینہ تلاش کر. مکتب مدرسہ چلانا ہے تو ڈاکٹر افتخار تلاش کر. جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن، جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن. جب فنا ٹھہرے گی تو پھر کیا 100 برس کا ایک دن. ماں باپ بھائی برادر دیکھتے رہ جائیں گے، ماں باپ بھائی برادر دیکھتے رہ جائیں گے. جائے گا روتا بلکتا سو یقبا ایک دن. یہ محل اور گاؤں تکیے باغ باغیچے تمام، یہ محل اور گاؤں تکیے باغ باغیچے تمام. چھوڑ کر سب خاک میں ہوگا بصیرہ ایک دن. ایک جنازے پہ میں پہنچا اور حسرت سے کہا، ایک جنازے پہ میں پہنچا اور حسرت سے کہا، میں بھی مل لیتا اگر وہ جیتا ایک دن. کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن. حضرات، میں بیمار رہتا ہوں، میری طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن مولانا نے کہا تھوڑا کہہ رہا ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مکتب میں پڑھاتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے: جب زمین خوب ہلائی جائے گی، خوب ہلائے جانا. جس وقت زمین اپنے خزانے کو باہر نکال پھینکے گی، اسی حالت کو کافر انسان دیکھ کر کہے گا وقال الانسان ما لها، ارے اس دھرتی کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خزانے کو نکال رہی ہے. کیوں نکالے گی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا اس کو یہی حکم ہوگا. اس دن ہر انسان اپنے موقف حساب سے واپس ہوگا تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھے. تو بھائیو، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا تو میدان محشر کے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا پائے گا. اور اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ذرہ برابر بدی کیا ہوگا وہ بھی میدان محشر کے اندر اپنے نام اعمال کے اندر لکھا ہوا پائے گا. حضرات، یہ قرآن شریف کی چھوٹی سی صورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں قیامت کا نقشہ کھینچ دیا ہے.
पहले के लोग इस आयत को पढ़ते थे तो उनके बदन के ऊपर कपकपी तारी होती थी, मगर आज हम लोगों की हालत यह है कि कुरान के ऊपर सरसरी तरीके से गुजर जाते हैं, कोई भी असर हमारे दिल पर नहीं पड़ता। अगर क़यामत का खौफ हमारे दिलों के अंदर आ जाए तो यकीनन हम उस दुनिया के तैयारी के अंदर लग जाएंगे जिस दिन न तो माल काम आएगा, न तो इज्जत-ओ-कारी काम आएंगे, न तो रिश्तेदारी काम आएगी, न तो कोई नेता काम आएगा, न तो कोई बेटा काम आएगा। क्यों? कुरान कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जब मैदान महशर बर्पा होगा तो नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सर के करीब कर दिया जाएगा, जमीन तांबे की कर दिया जाएगी, हर इंसान हैरान परेशान होकर के हजरत आदम के पास लोग जाएंगे कि दुआ करेंगे, कह देंगे आदम अलैहिस्सलाम दुआ कीजिए, सिफारिश करिए कि किसी तरीके से हिसाब व किताब हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माजरत पेश कर देंगे, इज़हबू इला गैरी, तुम लोग किसी और के पास जाओ, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत में ठिकाना दिया था, मैंने शजरे ममनूआ को खा लिया, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर मजाल नहीं, मैं अल्लाह के सामने सिफारिश नहीं कर सकता, तुम लोग किसी और के पास जाओ। पूरी दुनिया के लोग मिल करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तक कौम को दावतो तबलीग का काम किया, दावतो तबलीग का काम किया। आज हम लोग कोई 10 दिन 30 दिन 40 दिन चला जाता चूल्हे के अंदर तो कहता भाई हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, और कहते भाई बहुत बड़ा काम है, नबियों वाला काम है। ठीक है, नबियों वाला काम बहुत बेहतर काम है, ठीक, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम किसको किसको दावत दे रहे हैं? अवाश लोगों को दावत दे रहे हैं, बड़े बड़े जो ठाकुर सब बने हुए थे उनको दावत दे रहे हैं। जब दावत दे रहे थे तो कौम वाले इनको जो बोरे में बंद करके और जो रस्सी से बांध करके लटका देते, जिस तरीके से गेट को लुका दिया जाता उस तरह लुका देते थे। जिब्रील अमीन आते थे, बोरे को खोलते थे। 950 साल तक तबलीग किया इन्होंने, कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ। जब कौम नहीं मानी तो इन्होंने दुआ कर दिया, बद्दुआ कर दिया, रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह इस जमीन पर जितने नाफरमान सबका सफाया करे। उनकी दुआ कबूल होती है। हुक्म हुआ कश्ती बनाइए, कश्ती बनाया, मोमिन को बिठा लीजिए और मखलूक में जितने जोड़े हैं सबको बिठा लीजिए। तकरीबन 80 आदमी मान रहे थे और लोगों में से मखलूक में से परिंद सबको बिठा लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर लेकर के चल रहे हैं, सामने नबी का बेटा नजर आता है। नूह अलैहिस्सलाम बेटे को पुकार रहे हैं, कहते हैं या बुनय्या अरकम मअना वला तकुन मअल काफिरीन, मेरे प्यारे बेटे कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे। बेटा क्या कहता है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊंगा, मुझको तैरने का ढंग है। इन्होंने कहा ला आसिम अल-यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचने वाला नहीं है। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, नबी का बेटा नबी के सामने डूब गया, नबी का बेटा नबी के सामने डूब गया और नबी ने पुकारा, नादा नूह रब्बहु फकाल इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत खैरुल हाकिमीन, अल्लाह मेरा बेटा है, मेरे सामने डूब रहा है, मेरी कितनी रुसवाई हो रही है। अल्लाह ताला क्या कहता, या नूह लैसा मिन अहलिक इन्न अमलुहु गैरु सालिह, नूह तेरा बेटा नहीं है, अगर तेरा बेटा होता तो तेरी बात को मानता। नबी का बेटा नबी के सामने डूब जाता है, लेकिन नबी की रूहानी ताकत नहीं बचा रही है। क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उसने नबी की बात को नहीं मानी। तो जो ये पता करता है जो लोग नबी की बात को नहीं मानेंगे खुदा के अज़ाब से बचने वाले नहीं है, खुदा के अज़ाब से बचने वाले नहीं है। तो शर्त है नबी की बात को मानना। हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते, खुदा को मानते हैं खुदा की नहीं मानते। खुदा का हुक्म है नमाज पढ़ो, नहीं मानते। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। अबू तालिब कितना मानते थे, लेकिन नबी ने कहा कलमा पढ़ लो, सिफारिश करा दूंगा, नहीं माने, ठिकाना कहाँ होगा? सबसे जहन्नम के अंदर हल्का अज़ाब दिया जाएगा, लेकिन दिमाग का भेजा खोलेगा, समझे कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी जा रही। तो बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम मैदान महशर के अंदर माजरत पेश कर देंगे इज़हबू इला गैरी, या लोग किसी और के पास जाओ, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। आखिर में सब लोग किसके पास आएंगे? आखिर में हजरत जनाब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। सब लोग आएंगे
देखिए जिस तरीके से अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारा नबी रहमतुल आलमीन है। हमारे नबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। हमारा नबी तो ऐसा है कि अगर जमीन पे बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, सर को उठाए तो बुलंदी मिल जाए, सर झुका के बोले तो हदीस बन जाए, सर उठा के बोले तो कुरान बन जाए, इशारा कर दो तो चांद दो टुकड़े हो जाए, जिस गली से गुजर जाए एक गली में हटने लगे, खुश हो जाए तो जन्नत मचलने लगे, नाराज हो जाए तो जहन्नम उबलने लगे। हमारा नबी ऐसा। कल मैदान महशर के अंदर हमारा नबी जो है जब पैदा हुआ था तो रब्बे उम्मती कह रहा था, जब मैदान महशर बपा होगा तो रब्बे उम्मती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर सब झुकाए होंगे। अल्लाह ताला कहेगा इरफारा से या मोहम्मद सल्लल्लाहु, ऐ मेरे नबी सजदे से सर को उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, आपकी मुराद पूरी की जाएगी। मैदान महशर के अंदर अल्लाह के रसूल क्या मांगेंगे? हसन को भूल जाएंगे, फातिमा को भूल जाएंगे, अली को भूल जाएंगे, फिक्र हो गई तो किसकी होगी? रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती। अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, मेरे गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। तो हमारा नबी तो ऐसा है कि उम्मत के खातिर मैदान महशर के अंदर रोता हुआ नजर आएगा। पुलसराज के ऊपर जब आदमी जाएगा कट के गिरेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाते हुए नजर आएंगे। उम्मत प्यासी होगी तो मैदान महशर के अंदर अल्लाह के रसूल हौज कौसर पिलाते हुए नजर आएंगे। हमारे नबी के मर्तबे को कोई पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। हम बोलते हैं तो थूक निकलता है, नबी बोलता है तो नूर निकलता है। नबी ने लुआबे जहन लगा दिया तो अबू बकर के अंगूठे में शिफा मिल गई, हजरत अली के हाथ में लुआब लगा दिया तो उनको शिफा मिल जाती है। हमारे थूक के अंदर ताकत है? नहीं ताकत है, हम थूकते तो मक्खी बैठ जाती है। नबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। बलगलौला बिकमालिही कशफत जुदा बिजमालिही सल्लु अलैहि वाली। हमारे नबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे मतलब दोस्तों, मैदान महशर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों के लिए सिफारिश कराएंगे। कब कराएंगे? जब हम लोग नबी की बात को मानेंगे। तो हदीस के अंदर आता है इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तरबियत देनी चाहिए। लेकिन हमारा काम ये होता है, अगर किसी के घर हमारा अकीदा बिगड़ा हुआ है, 2-3 बच्चे मर जाते हैं तो नाम बिगाड़ करके कतवारू जुम्मन खैराती रख देते हैं। अकीदा यह होता बच्चे मरेंगे नहीं, हालांकि बच्चे मर जाएंगे। एक सेकंड आगे पीछे नहीं, नाम बदलने से बच्चा बचेगा नहीं। नाम अच्छा रखना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम। एक मौली साहब थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत दिनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ तो उनके बीवी ने कहा कि भाई मौली साहब इसका क्या नाम रहेगा? मौली साहब ने कहा बहुत दिनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, अच्छा नाम रखना चाहिए। मौली साहब ने रख दिया बरकत इलाही। क्या नाम रखा? बरकत इलाही। फिर 2 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, फिर औरत ने कहा क्या नाम रखना चाहिए? उन्होंने कहा रहमत इलाही। फिर 2 साल के बाद फिर बच्चा पैदा हुआ, उनका क्या नाम रखना चाहिए? उन्होंने करम इलाही। फिर बच्चा पैदा हुआ, फिर उन्हें क्या नाम रखना चाहिए? उनका बख्शिश इलाही। फिर कुछ दिनों के बाद एक और बच्चा पैदा 3 महीने 3 साल के बाद, तो बीवी ने कहा क्या नाम रखना चाहिए? उनका फजल इलाही। क्या? फजल इलाही। फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद 4 साल के अंदर बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने बीवी ने कहा भाई मौली साहब अब क्या नाम रखना चाहिए? आपके पास कोई तरकीब है? इन्होंने कहा बस इलाही। हाँ बस। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तरबियत देनी चाहिए। अच्छा नाम रखने से अच्छा असर होता है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम। एक औरत अपनी बच्ची का नाम रखी थी शरुल बरिया। शरुल बरिया। मौली साहब ने कहा भाई तुम शरुल बरिया क्यों नाम रखी? उसने कहा मौली साहब तो कुरान नहीं पढ़ने बका, कुरान में तो शरुल बरिया। मौली साहब ने कहा बेवकूफ कहीं के, कुरान के अंदर खैरुल बरिया तो भैया है। हाँ बेहतरीन ठिकाना। शरुल बरिया मैंने बुरा ठिकाना, खैरुल बरिया मैंने अच्छा ठिकाना। तो भाई अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तरबियत देनी चाहिए। और जब बच्चे अच्छी तालीम से मुराद क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लम, तुम में बढ़िया इंसान वो है जो कुरान को पढ़े पढ़ाए, कुरान को सीखे सिखाए। कुरान से बढ़कर कोई किताब है? कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं है। आदमी कब्र के अंदर जाता है तो अगर कोई नेता, डॉक्टर, कोई इंजीनियर जाकर कह दे ऐ फरिश्तों अज़ाब कब्र को हटा लो, फरिश्ते किसी की बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। कोई कहे हम प्रधान हैं, कोई कहे नेता, बमबारी करेंगे? नहीं, बात नहीं। लेकिन आपका लड़का जिसके सीने में चारुकुल मौजूद है, सूरह फातिहा है, अगर 3-3 मिनट पढ़ करके आगे पीछे दुरूद लगा करके कर दिया अल्लाह नबी के सदके तुफैल में ये सवाब माँ बाप को पहुंचा दीजिए और अज़ाब कब्र को हटा लो, तो अल्लाह ताला अज़ाब कब्र को हटा देता है। एक वाक़या मैं बताता हूँ। बहुत बड़ा आदमी शराबी कबाबी था, दुनिया से जा चुका था। उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके माँ ने मक्का में मौलवी साहब के हवाले कर दिया। मौलवी साहब ने पढ़ाना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करम करने वाला है। देखिए अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। इधर बच्चा अल्लाह को रहमानुर रहीम कह रहा है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा है, फरिश्तों जाओ उसके बाप को कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा है, उसके ऊपर से अज़ाब कब्र को हटा लो, क्योंकि मुझे गवारा नहीं इसका छोटा सा बच्चा अपनी ज़बान से मुझको रहमानुर रहीम कहे, मैं उसके बाप को अज़ाब नहीं दे सकता। तो बिस्मिल्लाह के बरकत से उसकी मफ़रत हो जाती है। तो जो इंसान अपने औलाद को साहिब कुरान बना देगा, हाफिज कुरान बना देगा, उसका कितना ऊंचा मुकाम। जब मैदान महशर बपा होगा तो उसके माँ बाप को सोने चांदी के ताज पहना जाएंगे। वो कहेगा अल्लाह ये मुकाम कैसे मिला? तो हुक्म होगा तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया। लोग बहुत लोग कहते हैं, कोई मौलाना कोई मुफ्ती लोग कहते हैं भाई जो हाफिजा पढ़ाएगा तभी तक, हालांकि यह नहीं। अल्लाह के रसूल ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लम, इसमें हाफिजे की कैद नहीं है। चाहे हाफिजा पढ़ाए चाहे नाज़रा पढ़ाए, चाहे हाफिजा पढ़ाए चाहे नाज़रा पढ़ाए, चाहे 10 ठो पूरा याद कर लेगा, उसका भी मकाम ऊंचा होगा मैदान महशर के अंदर। कुरान के अंदर इतनी तासीर है, कुरान के अंदर इतनी तासीर है। कोई तासीर माने चाहे ना माने, कुरान के अंदर तासीर है, कुरान के अल्फाज के अंदर तासीर है। बिस्मिल्लाह के अंदर इतनी तासीर है तो कुरान के अंदर कितनी तासीर होगी नहीं? दोस्तों तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं। कुरान ही एक ऐसी किताब है, लोग कहते हैं कुरान कोई बहुत ऊंची किताब नहीं है। मैं कहता हूँ कुरान से बढ़कर किसी किताब की डिग्री नहीं, कुरान से बढ़कर किसी की डिग्री नहीं। कोई आदमी जो है हजारों नेता हो, वकील हो, कुछ भी हो, लेकिन जनाजा पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता भाई? नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता? निकाह पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता। तरावी पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता। ये डिग्री वाले नहीं पढ़ा सकते। कुरान जिनको मिला है तोहफे के अंदर जिनके सीनों में वही पढ़ा सकते हैं। तो कुरान तो सबसे बड़ी डिग्री है। कुरान तो किसने इकरा रब्बिका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में थे तो जिब्रील अमीन आयत लेकर के आए, नबी पढ़िए, क्या पढ़िए? इकरा रब्बुकल अकरम, कुरान पढ़िए। इकरा रब्बुकल अकरम, कुरान पढ़ो, तुम्हारा रब तुम्हारा इकराम करेगा, तुम्हारा इकराम तुम्हारा रब करेगा। तो कुरान अर्रहमान वल्लम कुरान, अल्लाह तआला ने कुरान पढ़ने को कहा। तो कुरान एक ऐसी चीज है, कुरान को पढ़ना चाहिए। हदीस के अंदर आता है जिसके घर के अंदर कुरान पढ़ दिया जाए, सूरह बकरा पढ़ दिया जाए 40 दिन तक, तो आसेबी मामला दफा हो जाता है। अगर कुरान के ऊपर जुज़दान है उसको धुल करके कुरान के दोषों के अंदर चारों कोने छिड़क दिया जाए, आसेबी मामला दफा हो जाता है। आज हम लोग, हमारी माँ बहनें अपने कपड़ों को धुलती हैं, बच्चे के कपड़ों को धुलती हैं, टीवी के ऊपर पर्दे लगे रहते हैं उसको धुलती है, लेकिन कुरान के ऊपर जो जुज़दान है उसके ऊपर जाले मकड़े लगे रहते हैं, उसको किसी को धुलने की तौफीक नहीं होती। अगर उसी कुरान के जुज़दान को थाली के अंदर धुल करके चारों कोने छिड़क दिया जाए, आसेबी मामला दफा हो जाता है। यह है कुरान की तासीर। तो कहने का मतलब है अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तरबियत देनी चाहिए, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए अच्छी जगह। आज हम लोग शादी करते हैं क्या देखते हैं, अरे भाई 2 चक्का मिलने वाला है कि नहीं? 2 चक्का मिलने वाला नहीं, 4 चक्का। लोग कहते हैं अरे भाई वहाँ से आया तो भाई 3 लाख रुपया मिल रहा था, गाड़ी मिल रही थी, आप क्या देने वाले हैं? नबी ने फरमाया शादी के वक्त क्या देखा जाता है? कोई खूबसूरती देखता। अरे आजकल के लोग तो है औरतों का बाल नापते हैं कि औरत का बाल कितने बड़े हुए हैं, फुट नापते हैं, 6 फुट है कि 7 फुट है, उसको देखते हैं। हमारे नबी ने फरमाया ये फुट और फीट मत नापो, ये न देखो, हसब नसब मत देखो, बल्कि क्या देखो? दीनदारी देखो। फजफुर बिजाति दीन, दीनदार लड़का मिल जाए तो कबूल कर लो, दीनदार लड़की मिल जाए तो उसको कबूल कर लो, क्योंकि वो बच्ची जब घर के अंदर आएगी, कुरान पढ़ेगी तो घरों के अंदर बरकतों का नज़ूर होगा। और जो एमए बीए पढ़ करके आएगी तो एमए का माल उम्मे का माल एमए करेगा।
हाँ, लोग कहता अरे भाई एमए भी ये पढ़ी, वही पतोहिया जब आती है ना, अरे मौलवी साहब अरे एमए की उम्मे करती है, कोठरी माल उम्मे कहेंगे एमए कराती है, अरे मौलवी से तहसील तावील बना दी है, अरे भाई काहे ऐसी बेटवा शादी किया वैसे एमए भी ये थे मौलवी। कोई बच्ची जो कुरान पढ़ी उसको वो अपने घर के अंदर लाओ ना। हाँ, और ऐसे बच्चे से लोग अपने बिटिया की शादी करते हैं जो हिप्पी कर दो, जिस तरह बाल रखते हैं ऐसे ना चंदुदरी की तरीके से, उससे करते हैं। अगर दीनदार लड़का मिल जाता है बैठ करके पेशाब करने वाला, उसे नहीं शादी करते। अरे भाई वो तो लोकल लड़का है जो खड़ा होकर के पेशाब करता है, स्टैंडर्ड लड़का आता है। हदीस के अंदर आता है जब आदमी खड़ा होकर के पेशाब करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो कब्र वालों को अजाब हो रहा था। आपने टहनी गाड़ी और दोनों कब्र पर लगा दिया। आपने फरमाया कब्र वालों को अजाब हो रहा था, एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, एक की गुलखोरी किया करता था। तो इससे पता ये चलता है कि आदमी कब्र के ऊपर जो है अगर हरी चीज को लगा दिया जाए, गाड़ दिया जाए तो अज़ाब कब्र जो है महफूज हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हें कोई खड़ा होकर के पेशाब करेगा तो छींटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बैठ करके पड़ेगा तो इत्मीनान रहेगा, इत्मीनान से कर लेगा, छींटा नहीं पड़ेगा, कब्र के अज़ाब से बच जाएगा। तो ये कौन बताता है? ये मास्टर मौलवी साहब लोग बताते हैं, मौलवी साहब लोग बताते हैं ना, हाफिज बताएंगे, मौलवी साहब बताएंगे। लेकिन कॉलेजों के अंदर अपने बच्चे को भेज देते हैं जहाँ क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, डाक बने कुत्ता, पीक बने सुअर, इस तरह से नाम सिखाया जाता है। वहाँ बच्चों को भेजते हैं जहाँ बच्चों को भेजा जाता है अलिफ से अल्लाह को पहचान, जैसे बड़ों का कहना मान, से तौबा कर इंसान से साबित रखे ईमान, जिनसे जन्नत के खैरात, वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। जहाँ ये सिखाया जाता है अरे बच्चों बच्चों सर पर टोपी रख लो, अरे बच्चियों सर के ऊपर दुपट्टा रख लो, वहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजा। जहाँ दुपट्टे को सरों से उतारा जाता है वहाँ अपने बच्चियों को भेजते हैं। बेपर्दगी की वजह से भी कब्र के अंदर अज़ाब होता है। एक बच्ची थी, बड़ी हो गई थी, एक जगह का वाकया सही भी होता, अच्छा भी होता तो उसका इंतकाल हो गया तो कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी कुछ दिनों के बाद से कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा। तो लोग उसकी आवाज को सुने, कब्र के अंदर से खोले, वाकई जिंदा थी, तो उसी कफन के अंदर लिपेट करके खाली घर के अंदर जाकर के दरवाजा को बंद कर देती है और दरवाजा लोग खोल ले नहीं खोले। उसने कहा कि मेरे शक्ल को देख करके तुम लोग बेहोश हो जाओगे। एक ताकतवर इंसान दरवाजा को तोड़ कर गया, कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं बेहोश नहीं हूँगा। उसने जब दरवाजा खोला क्या देखता है कि उसकी शक्ल बदली हुई थी, उसकी शक्ल बदली हुई थी, ओठ कटे हुए थे, नाखून कटे हुए थे, पेशानी के ऊपर जो सर के ऊपर बाल थे वो नहीं थे। ये पूछता कि ये बच्ची बता तुम्हारे ओठ कैसे कटे हुए हैं? तो उसने कहा इसके बारे में मत पूछो, जब मैं घरों से निकला करती थी तो होठों पर लिपस्टिक लगाकर निकला करती थी, घरों की निगाहें मेरे ऊपर पर पड़ा करती थी। जब मैं कब्र के अंदर आई तो फरिश्तों ने आके जंबूरों से मेरे ओठ को काट डाला है। उस आदमी ने पूछा बच्ची बता तेरे सर के बाल कैसे उड़ गए, कैसे उड़ गए? उसने कहा जब मैं घरों से निकला करती थी तो बेगर दुपट्टा के घरों से निकला करती थी, लोगों की निगाहें मेरे बालों पर पड़ा करती थी, मैं पर्दा नहीं किया करती थी। जब मैं कब्र के अंदर आ गई तो फरिश्तों ने मेरे बालों को नोच लिया। फिर पूछा तुम्हारे नाखून क्या है? उसने कहा मैं जब घरों से निकला करती थी नाखून पालिश लगाकर नहीं लिया करती थी, लोगों की निगाहें मेरे हाथों पर पड़ती थी, मैं पर्दा नहीं करती थी, इसी वजह से कब्र के अंदर मुझको ये के अंदर फरिश्तों ने मुझला कर दिया। ये करता बेहोश हो जाती है, फिर ले जाकर के उसको दफन किया। तो ये बेपर्दगी से भी कब्र के अंदर अज़ाब होता है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बेगैरत हो गई है, बाजारों के अंदर जाती हैं, दुकानों पर जाती हैं और जहाँ पर बेशरम बेख्याल लड़के बैठे रहते हैं और वो दुकान वाले कपड़े को बटन पर सटा करके मैं से मिलाया करते हैं, मैं कम मिलाया करते हैं, देखो ये तुम्हारे बटन पर फिट हो रहा कि नहीं हो रहा। मानी मैं कब फिट कराने के लिए बाजारों के अंदर जाकर के हमारी माँ बहनें जो है दुकानों पर जाकर के ये कपड़ा लेने के लिए पहुंच जाती हैं, अपने मर्द से नहीं बेचती कि तुम चले जाओ कपड़ा लेकर के आओ। बेपर्दगी बहुत बुरी चीज है, बेहयाई बेशर्म। जब जिस वक्त घर से औरत निकलती है उसी वक्त से लानत बरसना शुरू हो जाती है। बेगर शौहर के इजाजत के औरतों को बाजारों में नहीं जाना चाहिए। जब मस्जिद के अंदर पाबंदी है कि मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज नहीं पढ़ने के लिए, आज हमारी औरतें जो है कहाँ चली जाती हैं, बाजारों पर चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरातिल क़ुबूर वल मुत्तखिज़ीन अलैहिल मसाजिद व सुरज। अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं और जो कब्रों पर चिराग जलाते हैं, जो कब्रों पर
सजदा करते हैं। लअनल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबिया'i मसाजिदा अला ला तत्तखिज़ू क़ुबूर मसाजिदा इन्नी अनहाकुम अन हाज़ा। अल्लाह की लानत है यहूद व नसारा पर जिन लोगों ने नबियों को कब्रों को सजदागाह बना लिया। और लोगों किसी नबी के कब्र को सजदागाह मत बनाना, मैं तुम सबको मना करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। कुरान कहता है माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो दें उसे ले लो और जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। हमको नबी का तरीका चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना किस तरह खाते थे, हमको उस तरह खाना का सर झुका के चलते थे। मिलते थे दुश्मनों के साथ किस तरह मिला करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों के साथ किस तरह मिला करते थे। नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, एक औरत जो रास्ते के अंदर कूड़ा करकट फेंकती थी, लोगों ने या रसूलुल्लाह रास्ते को बदल दीजिए। नबी ने फरमाया मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया हूँ, जो लोग रास्ते से भटके हुए उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए तशरीफ लाया। इत्तेफाक से बीमार पड़ती है, आप उसके घर पहुँचते हैं इयादत के लिए, वो तो कहती है या रसूलुल्लाह उसे बदला लेने के लिए। नबी ने फरमाया मैं बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इयादत करने के लिए, मिलाद खुशी करने के लिए आया हूँ। औरत कहने लगी या रसूलुल्लाह उसको कलमा पढ़ा लीजिए। फौरन पढ़ती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा इखलाक, हमारा किरदार नबी के इखलाक की तरह होना चाहिए, नबी के किरदार की तरह होना चाहिए। हम खाना किस तरह खाएं, जब बैठते हैं तो किस तरह बैठना चाहिए, सोते हैं तो किस तरह सोना चाहिए, इबादत करते हैं तो किस तरह इबादत करनी चाहिए। नबी ने फरमाया सल्लू कमा राअयतमूनी वसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा कि तुमने उसको देखा पढ़ते हुए, इस तरह नमाज पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए। तो देखिए कल क़यामत के मैदान के अंदर अल्लाह ताला हसब नसब नहीं पूछेगा। लोग कहते हैं हम खान साहब कोई शेख साहब को सैयद साहब ना, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है रात में गश्त कर रहे थे, गश्त करते करते घर के अंदर से आवाज आ रही थी, माँ बेटी सब कह रहे हैं आपस में बात कर रही थी। बाप बेटी, माँ कह रही बेटी को दूध में पानी मिला दो, बेटी कहती है दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, खलीफा का हुक्म है। माँ कहते रही मिला दो, खलीफा नहीं देख रहा है। बेटी कहती है नहीं खलीफा नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है, जो बादशाहों का बादशाह वो तो देख रहा है। फारूक आजम निशान लगा देते हैं और सुबह को अपने घर बुला करके बच्ची को और उस औरत को अपने लड़के से निकाह कर देते हैं। आज उसका घर भाई अरे हसब नसब देख लिया जाए, बहुत हसब नसब। और ऐसा हसब नसब जब जो देखते हैं, जब लड़की आती है ना तो रोना शुरू कर देते हैं। सब मौली साहब तावीज़ लिख दीजिए, पतोहिया बिगड़ गई है, लड़का बिगड़ गया। अरे भैया मौली साहब क्या करें भैया, तू हसब नसब कुरान को पढ़ा, उसको तो लेकर के आना चाहिए। हाँ घरों के अंदर लड़ाई हो जाती है, दहेज लेकर के आएगी, जब ज्यादा सामान लेकर के आएगी तो रखने के लिए जगह नहीं होगा। तो लोग कहेंगे भाई कमरा छोटा पड़ रहा है, लड़के तुम अलग अलग जाकर घर बनवा लो। क्यों भाई लड़का अलग से घर बनवाएगा भैया, कहाँ बनवाएगा? तुम्हारा तुम उसके बाप हो तो लड़का क्यों अलग से घर बनवाएगा? तुम क्यों उतना सामान लेकर के आएगा, क्यों लेकर के आए? तुम इंतजाम करो, लड़का इंतजाम करेगा, लड़का कहाँ से इंतजाम करेगा भाई? तो भाई हमारी जिम्मेदारी होती है हम ऐसी जगह शादी करें तो हम मुख्तलिफ सामान में बारात कम के लिए लेकर के जाएं, शादी ब्याह के अंदर मुख्तलिफ सामान करें, ये तरीका हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ये भाई आजकल बारात ले जाएंगे 100 आदमी ले जाएंगे, 50-150 आदमी ले जाएंगे। भाई लोग कह रहे हैं कि भाई गांव वाले कह रहे हैं कि भाई इतना लेकर के जाओ, ये कोई बात भाई? हम अपनी लड़की की शादी करना तो मुख्तसर लेकर के जाना चाहिए। तो हर काम नबी के तरीके पर अदा होनी चाहिए, हर काम नबी के तरीके पर। नबी खिलाफे पैगम्बर कसेर गुज़ीर कि हरगिज़ मंजिल नखाद रसीद, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के खिलाफ कोई भी चलेगा मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचेगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कल सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माँ होगी नहीं